Good morning, students. Students, now we are starting a new kingdom, that is kingdom fungi, right? But a kingdom fungi, it include about 1 lakh species, right? This kingdom includes about 1 lakh species. So it's a large kingdom. Kingdom fungi is large kingdom and includes 1 lakh species. Now बेटा फंजाई जो है किंगडम फंजाई में जो ऑर्गेनिजम्स हैं यानी कि फंजाई इट इज़ ए क्लोरोफिलस means A means absence of chlorophyll, right? So they don't have chlorophyll. Clear? And we know that अगर chlorophyll नहीं होगी तो वो photosynthesis नहीं कर सकता. अगर photosynthesis नहीं कर सकता वो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकता, उसका न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक नहीं होगा. So fungi is achlorophyllous, that means it is heterotrophic. It is heterotrophic in nature, right? Its body is thalloid body. What that mean thalloid? It's a new term for you. Thalloid means when the body is not differentiated into root, stem and leaves. अगर कुछ भी डिफ्रेंशिएशन नहीं होती है तो उसको हम बोलते हैं thalloid body. So when the body is not differentiated, it is known as thalloid body. Clear? And we also know that they are eukaryotes. अभी आपको बताने की ज़रूरत नहीं है यूकैरियोट्स क्या होते हैं. दे आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स मीन्स दे हैव membrane bound organelles, they have definite nucleus, right? And they are non-vascular means they don't have any xylem or phloem in them, right? Eukaryotic भी हैं. And another very important thing is that their cell wall, very important, their cell wall is made up of chitin. Now what is chitin? But a chitin is a polysaccharide. Polysaccharide means made up of many sugars, right? So kingdom fungi is a large kingdom, includes about 1 lakh species, right? Fungi is achlorophyllous means it don't have any chlorophyll. It is heterotrophic mode of nutrition. Thalloid body है, eukaryotes है, non-vascular है, and the very important thing is that their cell wall is made up of chitin, right? And they are spore forming individual. They will form spores. They are spore forming. Right, they form spores. And another thing is that they have glycogen as their reserve food, right? तो इनका जो रिजर्व फूड होता है वो क्या होता है बेटा? ग्लाइकोजन इज मेड अप ऑफ न्यूमरस ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, शुगर मॉलिक्यूल्स न्यूमरस का बना होता है ये, राइट? सो फंजाई इज अ मेजर ग्रुप, राइट? बेसिकली बहुत मेजर ग्रुप है जिसमें इतने ज़्यादा स्पीशीज़ आती हैं और जो जितनी भी स्पीशीज़ हैं दे आर बेसिकली decomposers. So they are the one which are able to convert complex food into the simple one. Decomposers कौन होते हैं बेटा? जो किसको कन्वर्ट कर देते हैं? कॉम्प्लेक्स फूड को या कॉम्प्लेक्स मटेरियल को किस में कन्वर्ट कर देते हैं बेटा? सिंपल में. So they are the major decomposers, right? And if we talk about
कि ये डिकम्पोजिशन के बाद किस में हेल्प करेंगे बेटा, क्योंकि देखो कॉम्प्लेक्स चीज़ सिंपल में कन्वर्ट हो जाती है, सो दे हेल्प इन रीसाइक्लिंग ऑफ द मटीरियल्स, रीसाइक्लिंग में। ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स चीज़ को सिंपल में कन्वर्ट कर दे तो सिंपल चीज़ जो है वो अब एज अ रॉ मटेरियल यूज़ हो सकती है, सो दैट हेल्प इन रीसाइक्लिंग। And if you talk about their nutrition, but they have saprotrophic mode of nutrition, right? Saprotrophic means they are the one which can grow on dead and decaying matter. So they grow on dead and decaying matter. So they have saprotrophic mode of nutrition. No vascular tissue are present. Even glycogen is their reserve food. Glycogen and oil, they both are their reserve food material. Basically more important is the glycogen, right? Now let's start studying the characteristics. अभी हम बिल्कुल जनरल डेफिनेशन की ही बात कर रहे थे, फंजाई की बस जनरल इंट्रोडक्शन थी. Now let's start studying the habitat, right? कहाँ पे हमें मिलती है फंजाई? फंजाई जो है बेसिकली इट इज़ फाउंड इन द ह्यूमस रिच वार्म डैम्प प्लेसेस में मिलती है, जहाँ पे ह्यूमस हो थोड़ा, राइट? और क्योंकि बेटा ये इनका हैबिटेट कहाँ होगा, जहाँ पे ये इनको फूड अवेलेबल होगा. क्लियर? सो दे आर द वन विच आर फाउंड इन डैम्प प्लेसेस, ह्यूमस रिच सॉइल. दे आर फाउंड इन damp soil, humus containing soil, right? And even it is found in some warm places, right? Humidity वाले areas में, humid areas. राइट? सो बेटा दिस इज़ एक्चुअली फाउंड एवरीवेयर, कि जो फंजाई है बेटा उसकी अक्रेंस एयर में भी है, वाटर में भी है, सॉइल में भी है, इवन इनसाइड द एनिमल्स एंड प्लांट्स में भी होती है. बट ये अबंडेंट कहाँ होती है? इन द वार्म एंड ह्यूमिड एरियाज, राइट? सो इवन इट इज़ फाउंड एज पैरासाइट्स, राइट? पैरासाइट्स की तरह भी होती है. इवन एज लाइकन्स. बेटा व्हाट आर लाइकन्स? आपके लिए न्यू टर्म है. लाइकन्स आर द म्यूचुअल रिलेशनशिप ऑफ एल्गी एंड फंजाई. So it's a mutual relationship between algae and fungi. It also exists as mycorrhiza, right? बेटा ये आपके लिए फिर से न्यू टर्म आ गई. माइको वर्ड होता है फंजाई के लिए, रहाइजा वर्ड होता है फॉर रूट्स. सो बेटा माइकोरहाइजा इज़ अ म्यूचुअल एसोसिएशन ऑफ फंजाई with the roots of higher plants, तो ये इनका हैबिटेट हो गया कि डैम्प प्लेस में, सॉइल में, एयर में, वाटर में, इनसाइड द पैरासाइट इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, right? They are abundant in warm and humid areas as mycorrhiza, as lichen. So these are the important habitats where we can find the fungi, right? And you know the branch of biology that deals with the fungi, it is known as mycology. Mycology is a branch of biology that deals with fungi. फंजाई स्टडी, उसका स्ट्रक्चर कुछ भी बेटा इसी में ही इंक्लूड होता है माइकोलॉजी में. क्लियर? नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट द स्ट्रक्चर ऑफ थैलस. द स्ट्रक्चर ऑफ थैलस, राइट?
थैलस याद है, मैंने बताया था आपको, थैलस इज़ एक्चुअली हम कह सकते हैं इट्स अ अनडिफरेंशिएटेड बॉडी जिसकी कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं होती, राइट। सो स्ट्रक्चर ऑफ थैलस, सो थैलस में इसका कैसा होता है, थैलस कंसिस्ट ऑफ branched tubular structures, branch and tubular structures like this, see, branch tubular structures, branching, right. These branch tubular structures, they are known as hyphae. Singular is hypha, plural hyphae, right. और जो हाइफा होते हैं बेटा उनकी ग्रुपिंग को हम क्या बोलते हैं, माइसीलियम। सो हाइफे ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म माइसीलियम, राइट। तो जब हाइफे की ग्रुपिंग होएगी इतने सारे, तब हम उसको क्या बोल सकते हैं, ये सिंगल स्ट्रक्चर ब्रांच ने जो है ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, इसको हम हाइफा बोल सकते हैं। द ग्रुपिंग इज नोन एज माइसीलियम, राइट। सिंगुलर इज हाइफा। सो द बॉडी ऑफ द फंगस दे आर हैविंग filamentous branches और हाइफे एंड इट इज़ नोन एज माइसीलियम। बट रिमेंबर हर एक फंजाई में ऐसा नहीं होगा, एक्सेप्शंस हमेशा ही होती हैं। एक्सेप्शन, इसकी जो एक्सेप्शन है वो है यीस्ट। बेटा यीस्ट एक फंजाई है लेकिन वो कैसी होती है बेटा, सिंगल सेल्ड, उसमें कोई माइसीलियम नहीं होता, कोई हाइफे नहीं है, इट इज़ यूनिसेलुलर और इट इज़ सिंगल सेल्ड, राइट। क्लियर है ये चीज़। तो अब हम बात करेंगे इसके अब प्रॉपर एक सेल के स्ट्रक्चर की। नाउ द सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई, सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई। फंजाई के सेल का स्ट्रक्चर क्या होगा, राइट। सबसे पहले उसमें क्या क्या चीज़ें हैं पहले वो हम डिस्कस कर लेते हैं। एक है इसमें सेल वॉल, सेकंड है सेल की मेम्ब्रेन, और थर्ड है इसमें साइटोप्लाज्म। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन एंड द साइटोप्लाज्म। तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल यूकैरियोटिक सेल की तरह है, बिल्कुल यूकैरियोटिक सेल की तरह। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ इसकी स्ट्रक्चर सेल की, सी। बेटा ये जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ करी है बिल्कुल अभी ये वाली, दिस इज़ द वॉल। सेल की क्या है, ये वॉल है। और मैं पहले बता के चुकी हूँ आपको कि सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन, यस। ओके, सेल वॉल के अंदर क्या होएगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो देखो अब मैं ड्रॉ कर रही हूँ ये है इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या होगा बेटा, सारा का सारा साइटोप्लाज्म, राइट। तो साइटोप्लाज्म में क्या होगा, न्यूक्लियस, सी। न्यूक्लियस में क्या होगा बेटा, प्रॉपर हमने बोला था पहले कि न्यूक्लियस जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होगी क्योंकि वो यूकैरियोट है। ये न्यूक्लियस की मैं मेम्ब्रेन ड्रॉ कर रही हूँ, राइट। ये बीच का डीएनए, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई। सो दिस वन इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दिस इज डीएनए, राइट। इसके अलावा बेटा माइटोकॉन्ड्रिया, दैट इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल। दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, राइट।
इसके अलावा न्यूक्लियस हम बात कर चुके हैं। ग्लाइकोजन का पार्टिकल मैंने आपको बताया था, इसमें रिजर्व फूड क्या होता है बेटा, ग्लाइकोजन, राइट। और ये लिपिड का ग्लोब्यूल भी कह सकते हो बीच में, ऑयल जिसे हमने बोला था, लिपिड ग्लोब्यूल, ऑयल भी लिख सकते हो, राइट। इसके अलावा बेटा इसमें होंगे डिक्टोसोम्स। ये क्या चीज़ है बेटा, नॉर्मली आपने गोल्जी अपरेटस के बारे में सुना होगा, राइट। आपने 9th क्लास में पढ़ा भी होगा गोल्जी अपरेटस का काम क्या होता है, दैट हेल्प इन पैकेजिंग, राइट बेटा। लेकिन यहाँ पे गोल्जी अपरेटस टर्म हमने यूज़ नहीं करनी, द टर्म विच इज़ यूज इज़ डिक्टोसोम। प्लांट्स में भी यही टर्म यूज़ करते हैं और फंजाई में भी। एक्चुअली गोल्जी अपरेटस जो होती है वो कुछ इस तरह से होती है, ये देखो इस तरह से, लेकिन इसमें स्ट्रक्चर यही है, लेकिन बहुत सारे नहीं है, देखो स्कैटर्ड स्ट्रक्चर है, सिंगल है, जस्ट वन, तो हम बोलते हैं डिक्टोसोम, राइट। और इसके अलावा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम ER बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइट, ये है हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER, क्लियर। सो न्यूक्लियस भी हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब है राइबोसोम्स। बेटा राइबोसोम्स का नेचर क्या होगा, यस ATS, क्योंकि ये क्या है बेटा, यूकैरियोट है। राइबोसोम्स, न्यूक्लियस हो गया, ER हो गए, राइबोसोम्स हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, वॉल हो गई। सो ऑल एवरीथिंग इज डन नाउ, राइट। और ये लिक्विड मैट्रिक्स जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है, अगर इसको क्लोज भी नहीं करोगे तो भी ठीक है, राइट। सो दिस वन इज साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, दैट इज अ जेली लाइक सब्सटेंस। सो सेलुलर स्ट्रक्चर में सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है और साइटोप्लाज्म है। बेटा इसमें डिक्टोसोम्स होते हैं, अदरवाइज बाकियों में जैसे प्लांट्स में हम बात करें तो गोल्जी अपरेटस होती है, सॉरी प्लांट्स में डिक्टोसोम बोलते हैं, लेकिन वैसे अदरवाइज डिक्टोसोम जो है वो एक गोल्जी अपरेटस की तरह ही ऑर्गेनेली होती है, लाइक दिस, राइट। लेकिन इसमें सिर्फ एक ही यूनिट होता है इसका, काफ़ी सारे यूनिट्स नहीं होते, राइट, क्लियर। तो ये था इसके सेल की स्ट्रक्चर, या इसके टिश्यू, सेल की ही स्ट्रक्चर बोलेंगे, टिश्यू की तो नहीं बोलेंगे, क्लियर। और इसके बाद का जो टॉपिक है वो हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, राइट। माइसीलियम पढ़ेंगे हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में।